So next we have to discuss 9.4. Let's start with your doubts. Coming to question number 6. Question number 6 is like, if 24.8 meter of uniform iron rod weighs 82.15 kg. Now here we are comparing the iron rod along with its weight. रॉड और वेट को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. इफ़ 24.8 मीटर ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, तो उसकी लेंथ एंड उसका वेट कंपेयर कर रहे हैं. इफ़ द लेंथ ऑफ द रॉड इज़ 24.8 मीटर, देन इट्स वेट इज़ इट वेस्ट 82.15 ग्राम. What will be the length of 26.5 kg of the same rod? Now, if the weight of the rod is 26.5, okay fine, this is also in kilograms. 26.5 kg, what will be the length of the rod? तो रॉड का लेंथ क्या होगा? हमने बोला था जो अननोन है उसको किस साइड रखना है? RHS में रखना है, और जो नोन है उसको LHS में रखना है. सो लेंथ ऑफ द रॉड weighing 82.15 kg is equals to 24.8 मीटर. रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से भी कर सकते हो आप. जिस रॉड का वेट 82.15 kg है उसकी लेंथ कितनी है? 24.8 मीटर. नाउ लेंथ ऑफ द रॉड वेइंग 1 kg, व्हाट विल बी इट्स लेंथ? कितनी हो जाएगी? यस, 24.8 मीटर डिवाइडेड बाई 82.15. Next, in the next case, this is first of all we have to find the value of 1 unit. Then in the next step we have to find the value of the required unit. Yes, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था. Yes, you can. Now लेंथ ऑफ द रॉड वेइंग 26.5 kg कितना हो जाएगा? क्या होगा? यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट. वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस. अब क्या इसको सिंप्लीफाई कर लोगे या मैं करूँ सिंप्लीफाई? सिंप्लीफाई कर लोगे? ओके फाइन. सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7. आपको इन क्वेश्चन से बस ऐसे वैल्यू लिखनी है. वैल्यू लिख के बस स्टेटमेंट फॉर्मेशन करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा. एक बार के लिए स्टेटमेंट आपको लिखना नहीं आएगा तो टीचर इसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा. यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये आपका करेक्ट होना चाहिए. मैंने आपको बहुत सिंपल सा लॉजिक बोला. जो आपको नोन है LHS में उसको ले जाओ, जो अननोन है RHS में ले जाओ. क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा आपका. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. इफ़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ बोर्डिंग हाउस, आई थिंक वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द यस्टरडेज क्लास, so I'm not going to discuss it again. You can watch the video. Then coming to the question number 9, no one has doubt in question number 8. Let's move to question number 9. A train covers a distance in 5 hours at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर. एक ट्रेन है, वो कितना टाइम लेती है? 5 hours का टाइम लेती है. And how much distance does it cover? It covers, sorry, we don't know how much distance it is covering, but it is traveling at the speed of
60 kilometers per hour. Now can you tell me what is the meaning of 60 kilometers per hour? Exactly. Just like if you go to the shop and ask shopkeeper for the rate of sugar, he says that's 20 rupees per kg. It means for 1 kg you have to pay rupees 20. So here also in the same way, for 1 hour in 1 hour the train is traveling the distance of 60 kilometers. So distance traveled by train in 1 hour, how many kilometers? Yes, it is 60 kilometer. Now it is always already given to you that the value of 1 unit is 60. So here we don't have to find the value of 1 unit. यहाँ पर already आपको 1 unit की value given है. जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 1 unit की value find की, then required unit की value find की. But here it is always already given to us. So directly we'll find the distance covered by train in 5 hours. Distance traveled by train in 5 hours is कितना होगा? Yes, 60 into 5 hours, 5 into 60, that is 300 kilometers. सही है. Moving on to the question number 10. Traveling 900 किलोमीटर बाई ट्रेन कॉस्ट रुपीज़ 225. अगर आप ट्रेन से 900 किलोमीटर्स ट्रैवल करते हो तो आपको कितना रुपए पे करना पड़ रहा है? यू हैव टू पे रुपीज़ 225. हाउ मच विल इट कॉस्ट इफ़ अ पर्सन, हाउ मच विल इट कॉस्ट मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट. How much will it cost if a person wishes to travel 360 km by the train? Now if a person wants to travel for 360 kilometers only, then how much he has to pay? तो कम पे करना पड़ेगा कि ज़्यादा पे करना पड़ेगा? यस, कम पे करना पड़ेगा, राइट. डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनवर्स प्रपोर्शन है? इनवर्स है. इनवर्स का मतलब क्या होता है कि एक में इंक्रीज़ हो तो दूसरे में डिक्रीज़ हो. तो क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये डिक्रीज़ हुआ तो क्या ये इंक्रीज़ हो रहा है? ऐसा है क्या कि हम डिस्टेंस को हमने डिक्रीज़ कर दिया तो क्या पैसे हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे, अब कम देने पड़ेंगे? तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ ना, ये डिक्रीज़ हो रहा है तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ. सो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 900 किलोमीटर्स is rupees 225. Now first of all we have to find the value of 1 unit. So cost of traveling 1 kilometer कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? Yes, it is 225 divided by 900. We got the value of 1 unit. Next we have to find the value of the required unit. Cost of traveling 360 kilometers. क्या करेंगे? Yes, we are going to multiply by 360. हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगा.
ओके फाइन, कैलकुलेशन हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 9.5, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक, if 210 men can complete a piece of work in 44 days, now number of men and number of days required to complete the work. 210 men can complete a piece of work in 44 days. किसी एक काम को करने के लिए 210 आदमी 44 डेज़ का टाइम लेते हैं. How many days will 280 men take to do it? Now if the number of men has been increased from 210 to 280, how many days will they take to complete the same work? तो आप मेरे को ये बताइए, क्या अब ये ज़्यादा दिन लगेगा काम करने में या फिर कम दिन लगेगा काम करने में? अच्छा, तो यहाँ पर देखियो, जब हमने नंबर ऑफ मेन इंक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ डेज़ हो रहा है डिक्रीज़. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा या फिर इन्वर्स प्रपोर्शन होगा? इन्वर्स वेरिएशन होगा. ठीक है, तो इसके लिए आपका पहला मेथड क्या है सॉल्व करने का? देखिए यहाँ पर अब हम पहले जैसे वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करे थे, क्रॉस नहीं करेंगे. यहाँ पे क्या करते हैं हम, देखो नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ डेज. 210 मेन, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 44. ठीक है, इतना काम कर रहे हैं. नाउ 280 मेन एंड नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता है, लेट इट बी x. ऐसा लिख सकते हैं. ये आपका इन्वर्स, देखो डायरेक्ट और इन्वर्स में समझना. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए सबके सब हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन के सॉल्व किए हैं. जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए सारे के सारे हमने क्या किए थे, डायरेक्ट किए थे. उसमें अगर आप याद करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था. अगर ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होता तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, एक बार के लिए बताती हूँ. 210 अपॉन 44 एंड 280 अपॉन x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आता, देखो ये 210 इंटू एक्स इक्वल्स टू 280 इंटू 44 आता. यही आता. क्रॉस करे थे, देखो 280 इंटू 44 एंड 210 इंटू एक्स. क्रॉस हो रहा था, बट यहाँ पर क्रॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है. देखो 210 इंटू 44 एंड 280 इंटू एक्स डायरेक्ट हो रहा है. कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चेक करना है कि ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इन्वर्स प्रपोर्शन है. अगर आप ये चेक करके इजीली पता कर लेते हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा. मैं इसको स्टेटमेंट्स भी बताऊंगी, बट स्टेटमेंट से आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा. ये आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा क्योंकि इसमें डायरेक्टली सॉल्व कर देते हो. तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू फाइंड करनी है. 280 को शिफ्ट करेंगे, 210 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 280. सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. हाँ ओके 33 आएगा, तो 33 इसका आंसर हो गया. अभी इसी का दूसरा मेथड थोड़ा स्टेटमेंट से देख लेते हैं, बट थोड़ा सा आपको ये प्रैक्टिस से आएगा स्टेटमेंट वाला सॉल्व करते करते. देखो इन 44 डेज 44 डेज़ में क्या हो रहा है, या फिर हमें पता क्या है, 210 मेन का पता है. जो पता है वो लेफ्ट हैंड साइड में. सो 210 मेन कैन कंप्लीट वर्क इन 44 डेज, या फिर नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क बाय 210 मेन इज़ 44 डेज. स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर लेना.
210 मेन मिल करके एक वर्क को 44 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ, एक आदमी, सो द वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन, थोड़ा सोचना है, इसको सोच के बताना मेरे को। द वर्क कंप्लीटेड बाय वन मैन। अब एक आदमी को सेम काम करने में ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे? तो ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई, अगर कम दिन लगते, कम का मतलब डिवाइड, ठीक है। ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू तो और छोटी आ जाएगी ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। अब हैं कितने हमारे पास? अब 280 मैन हो गए। अभी तक मैंने बोला वन मैन का निकाल लिया हमने। अब वन से कितने मैन हो गए? 280। स्टेटमेंट लिख लेना आप, 280 हो गए। अब एक से 280 मतलब ज़्यादा आदमी हो गए। तो ज़्यादा आदमी मतलब कम टाइम लगेगा या ज़्यादा टाइम? कम टाइम लगेगा। कम का मतलब डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया। सेम यही आ गया जो यहाँ पे किया था। समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत? पूरा समझ में आ गया? अच्छा, अच्छी बात है। चलो देखते हैं और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, थोड़ा ध्यान से सुनना। 2 रहने दो, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ हॉस्टल 100 बॉयज़ द प्रोविज़न इज़ फॉर 40। प्रोविज़न मतलब उनके खाने पीने का जो सामान है वो सिर्फ 40 डेज़ तक के लिए चलेगा, ठीक है। इन अ हॉस्टल, अब नंबर ऑफ बॉयज़ एंड प्रोविज़न कितने दिन चलेगा उसका यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। इन अ हॉस्टल 100 बॉयज़ द प्रोविज़न इज़ फॉर 40 डेज़। अगर एक हॉस्टल में 100 लड़के हैं तो उनके जो खाने पीने का सामान वहाँ पे रखा हुआ है वो 40 डेज़ तक चल जाएगा। इफ़ 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन इन द हॉस्टल, 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन द हॉस्टल मतलब अब बॉयज़ कितने हो गए हैं? 60। यस, वेरी गुड। अब बॉयज़ हो गए हैं 60 नहीं हुए हैं, 160 हो गए, क्योंकि 60 और नए बच्चे आ गए हॉस्टल में। इफ़ 60 मोर बॉयज़ ज्वाइन दी हॉस्टल हाउ लॉन्ग विल द प्रोविज़न लास्ट। तो ये कितने दिन के लिए इनका खाना चलेगा? अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ़ बॉयज़ इंक्रीज़ हुए हैं, 100 थे अब 160 हो गए। तो खाना कम दिन के लिए चलेगा या ज़्यादा दिन के लिए चलेगा? कम दिन। तो इनवर्स प्रपोर्शन हुआ कि डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ? इनवर्स प्रपोर्शन होगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा? इनवर्स। हमेशा याद रखना, इनवर्स मतलब उल्टा, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। इफ़ वन इज़ इंक्रीजिंग अनदर वन इज़ डिक्रीजिंग, उल्टा काम हो रहा है। डायरेक्ट मतलब सेम काम और डायरेक्ट काम हो रहा है, तुरंत हो जा रहा है। जो इंक्रीज़ कर रहा है ये भी इंक्रीज़ कर रहा है, दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। इनवर्स मीन्स इट्स गोइंग इन द इनवर्स वे। इफ़ वन इज़ इंक्रीजिंग अनदर वन इज़ डिक्रीजिंग। डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व कर लो इसको। 100 इंटू क्या करेंगे? 100 इंटू 40, ये दोनों इक्वल्स टू 160 इंटू लेट इट बी एक्स डेज, 160 इंटू एक्स। समझ में आया कुछ इसमें? तो अब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, सॉल्व करना आपका काम। अब मैं स्टेटमेंट लिखकर दिखा रही हूँ। सो यहाँ पर अननोन क्या है? प्रोविज़न। गिवन क्या है? बॉयज़, नंबर ऑफ बॉयज़। जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, जो अननोन है राइट हैंड साइड। सो प्रोविज़न फॉर 100 बॉयज़ कितने दिन के लिए है? 40 डेज़ के लिए है। नेक्स्ट हमने बोला 1 की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, तो
एक लड़के के लिए प्रोविज़न ज़्यादा दिन चलेगा कि और कम दिन चलेगा? ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड? ज़्यादा का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए हैं 160। स्टेटमेंट आप पूरा लिख लेना, मैं लिख नहीं रही हूँ। 160 बॉयज़, देन यहाँ पर 160 बॉयज़ में प्रोविज़न कम दिन चलेगा या ज़्यादा दिन चलेगा? 1 बॉय के लिए इतना था, कम का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड? यस, कम का मतलब डिवाइड बाय 160। सॉरी, यहाँ पे 160 सेम यही आ गया। समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब मैं एक ही मेथड करूँगी, आपको मैंने दोनों मेथड 2 क्वेश्चन में समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। An NCC camp has food for 400 cadets for 25 days। ये फूड से रिलेटेड सेम ही है, इसको रहने दो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। 9 men can complete the electric fitting in a building in 6 days। अब फिर से कंपेयर हो रहा है नंबर ऑफ मेन, और वो एक काम को कितने दिन में करेंगे वो कंपेयर कर रहे हैं, मेन एंड डेज। सो 9 मेन, 9 आदमी लगे हुए हैं। 9 men can complete the electric fitting in a building in 6 days। They are doing the electrical work in a building, and if there are 9 laborers, they can complete the entire work in 6 days. How many days will 27 men, now number of men 27, how many days will 27 men take to do the same job? अब इनको 27 men हो गए, तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम टाइम लगेगा। मतलब नंबर ऑफ मेन इंक्रीज़ किए तो डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ कि इन्वर्स प्रपोर्शन हुआ? यस, वेरी गुड, बहुत समझ में आ गया। प्रपोर्शन हो गया यहाँ पर इन्वर्स। अब मैं आपको बिना सॉल्व किए इसका आंसर बताऊँ? बिना सॉल्व किए 18 आएगा, पर कैसे आएगा? कैसे आएगा? 2 आएगा इसका आंसर। कैसे आएगा? देखो, मैं बिना सॉल्व किए बस आपको बता रही हूँ, आपको बिना सॉल्व किए नहीं बताना है। नहीं, देखो 9 3 ज़ा 27, 3 टाइम्स यहाँ पर नंबर ऑफ मेन इंक्रीज़ हुए हैं, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ का मतलब क्या है? डिवाइड बाई 3 कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ है, तो यहाँ पे आप डिवाइड बाई 3 कर दो। अगर यहाँ पे डिवाइड बाई 3 होता तो आप यहाँ मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते। 3 2 ज़ा 6, डायरेक्ट आंसर आ गया 2। बट आपको ये अपनी कॉपी में नहीं करना है, ये बस मैंने आपको बताया, बस हो गया। आप कैसे करोगे? 9 × 6 इक्वल्स टू 27 इंटू लेट इट बी x। तो x आपका क्या हो जाएगा? 9 × 6 डिवाइडेड बाई, आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हुआ क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। A ship has provision for 600 passengers for all the questions are almost same। अब आपको लगेगा सारे क्वेश्चन तो सेम एक जैसे ही हैं। A ship has provision for 600 passengers for 50 days। अब number of passengers and provision, नंबर ऑफ पैसेंजर्स और प्रोविज़न का यहाँ पर कंपैरिजन है। इन अ शिप हैज़ प्रोविज़न फॉर 600 पैसेंजर्स फॉर 50 डेज़। नंबर ऑफ पैसेंजर्स 600 हैं, तो प्रोविज़न कितने दिन के लिए है? 50 डेज़ के लिए है। इफ़ 150 मोर पैसेंजर्स ज्वाइन द जर्नी, तो अब कितने पैसेंजर्स हो गए? यस, 750 हो गए हैं। If 150 more passengers join the journey, then for how many days will the provision last? तो ये provision कितने दिन के लिए चलेगा?
अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स इंक्रीज़ हुए हैं, प्रोविज़न का मतलब आपको पता चल गया, तो प्रोविज़न इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा? डिक्रीज़ होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इन्वर्स प्रोपोर्शन? Yes, it is inverse proportion. Now you know the method to solve it. That is very simple. मेरे को अब बताना ही नहीं पड़ेगा शायद। क्या लिखेंगे बताइए आप लोग? Yes, very good. Now you got the concept. I think you can solve it very easily. हो जाएगा easily solve ये?